Hello everyone, myself Neha Yadav, and today students today we will be discussing about the further topics of module 1. As we have discussed in the earlier topic regarding introduction part of the research, that was meaning of research and types of research and what are the objectives of research, and what is all about research problem and all. Okay. So in today's class we will discuss the next topic or further topics of the first unit, that is research problem. So in today's presentation we will cover the topics like what is research problem, what do you mean by research problem, and why it is required, and why what are the techniques which are involved in defining a research problem. So all the research part that we have discussed in the previous topics, all these research problems start with the question that what is research problem. Okay. So if there is no problem, so there is no research. So first of all there should be a research problem, then only a researcher can conduct research on that problem for the solution of the problem. So what is research problem? Research problem, you can say it is a difficulty, it is a problem which a researcher faces or experience in context of, you can say, uh, any situation. Okay, that situation can be practical situation or that can be a theoretical situation. So research problem means whatever difficulty a researcher faces, yeah, experience, if in context of any theoretical or practical situations, and he want to obtain a solution for that problem, for that difficulty, that is called research problem. So I have mentioned in the slide here that what is research problem. A research problem in general refers to some difficulty, which difficulty means any problem that which a researcher experiences, or you can say feel, in context of either a theoretical, it can be a theoretical situation also, it can be a situation which can be related to any theoretical aspect, or it can be related to any practical aspect also, and he want to obtain a solution for the same, for that problem. If he want to obtain a solution, so this is called research problem. For example, suppose if a researcher is facing problem in context of marketing of the Patanjali products in any market, in any sector. Suppose, for example, in Lucknow city, how many customers are not satisfied with the marketing strategies of Patanjali product. So this can be a problem. Now you can do research in this field. So this is a problem. So problem is any difficulty which a researcher experiences in context of a theoretical or practical situation, and he want to obtain the solution for that problem. So a research problem does exist if following conditions are met. So there are certain conditions for any research problem. Suppose if these conditions are not met, so there can be not a proper solution for any problem. So a research problem can only exist if following conditions are met. So first one is there must be an individual. Individual means individual. It can be individual, single individual, or it can be a group also, or it can be an organization also. Suppose it can be a Reliance group, okay, or it can be a BBD University, or it can be that problem can be related to an individual also, to any single individual. मतलब एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकती है, या किसी पूरे के पूरे ग्रुप से रिलेटेड हो सकती है, या पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है. सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी, it can be individual, group, or organization. For example, suppose let us call it I. I means to whom the problem can be attributed. I एक वेरिएबल हमने यूज किया है उन इंडिविजुअल्स के लिए या ग्रुप के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है. ठीक है. Then second condition is that कि there must be at least two courses of action. Now for that problem there must be two courses of action. Two courses of action means there can be two alternatives. ठीक है. अगर कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होगा तो कम से कम दो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने चाहिए अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. फिर उस अल्टरनेटिव में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट सूटेबल होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो हमें सेलेक्ट करना होगा. तो एटलीस्ट देयर शुड two courses of action, means two alternatives or two means available to the researcher. So suppose we can say it C1 and C2 are the two courses of action to be pursued. A course of action is defined by one or more values of control variables. ठीक है. और जो ये alternatives होते हैं ये कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं. ठीक है. जिनको ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है.
for example the number of items purchased at a specified time is said to be one course of. अगर एक specified time में हम कितने items purchase कर रहे हैं example के तौर पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, one course of action है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि एक इंडिविजुअल होना चाहिए, जिस इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसको वो प्रॉब्लम अकर हो रही है, और दूसरा क्या है कि दो ऑल्टरनेटिव्स या दो कोर्सेज ऑफ एक्शन, कम से कम एटलीस्ट टू कोर्सेज ऑफ एक्शन होने चाहिए। थर्ड है कि देर मस्ट बी एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है या जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं या जो भी मीन्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके दो पॉसिबल आउटकम भी होने चाहिए। अगर दो ऑल्टरनेटिव्स हैं तो उसके दो आउटकम भी होने चाहिए, ठीक है। कि सपोज अगर हम पहला ऑल्टरनेटिव या पहला कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे तो उसका क्या आउटकम होगा, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल सपोज O1 and O2 ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ विच वन शुड बी प्रेफरेबल टू द अनदर। तो हो सकता है कि हमारे पास दो कोर्सेज ऑफ एक्शन है, अब उसमें से एक हम प्रेफर कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहे हैं, तो दोनों जो हम जिसको प्रेफर कर रहे हैं और जिसको हम नहीं प्रेफर कर रहे हैं दोनों को क्या आउटकम्स हैं वो भी होने चाहिए। तो ये थ्री कंडीशंस हैं दैट शुड एग्जिस्ट इफ एनी रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सो देयर दीज आर द कंडीशंस दैट आर टू बी मेट, ठीक है। तो in other words, with these means that there must be at least one outcome that a researcher wants. That is आउटकम मतलब उसका जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च को करने का, ठीक है, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसका एक आउटकम भी होना चाहिए जो रिसर्चर चाहता है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, कंडीशन क्या है कि द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, जो भी कोर्स ऑफ जो भी ऑल्टरनेटिव या जो भी कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है इट मस्ट प्रोवाइड सम चांस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब जो भी हम ऑल्टरनेटिव्स या जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम इंक्लूड कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो हमारे ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने का एक चांस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव को मेट आउट करने का चांस नहीं है तो दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर अस। सो इट शुड प्रोवाइड सम चांस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव बट दे कैन नॉट प्रोवाइड द सेम चांस। अगर अगर हम दो एक्शंस दो अल्टरनेटिव्स को चूज कर रहे हैं तो दोनों का सेम चांस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज द चॉइस वुड नॉट मैटर, क्योंकि अगर दोनों का ही दोनों सेम आउटकम प्रोवाइड करेंगे तो फिर दोनों फिर उसमें कोई हम प्रेफर नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ही कोर्सेज ऑफ एक्शन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक चांस प्रोवाइड करना चाहिए, मगर दोनों का चांस सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ये हमारे जो भी अभी हमने पढ़े हैं 4 पॉइंट्स, ये हमारे क्या हैं, कंडीशंस हैं जो हमें मेट करने ही करने हैं अगर रिसर्च प्रॉब्लम अगर होती है, ठीक है। विदाउट दीज कंडीशंस रिसर्च प्रॉब्लम कैन नॉट exist. So research problem is all about कि whatever difficulty a researcher is facing in context of any practical or theoretical aspect. The next one is, now we have discussed about these components and now these components are being described in short here. Components of research problem is that under there should be an individual group which has some difficulty with the problem, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल या ग्रुप होना चाहिए जिसको डिफिकल्टी अकर हो रही है या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और there must be, second point I mentioned, there must be some objective to be attained at, because if one have no objective then one cannot have a problem, ठीक है। Third one is there must be alternative means courses of action for obtaining the objective one wishes to attain. This means that there must be at least two means available to a researcher, for if he has no choice of means he cannot have a problem. अगर आपके पास जो भी आप मीन्स हैं या जो भी आपके पास कोर्सेज ऑफ एक्शन है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें अगर आप चॉइस नहीं कर रहे हो, किसी एक को प्रेफर नहीं कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। एंड देयर मस्ट रिमेन सम डाउट इन द माइंड ऑफ रिसर्चर विद रिगार्ड टू सिलेक्शन। अब जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन आपने इंक्लूड किए हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपने इंक्लूड किए हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा, उससे रिलेटेड भी डाउट होनी चाहिए रिसर्चर के माइंड में। दिस मीन्स दैट द रिसर्चर मस्ट आंसर द क्वेश्चन विच इज कंसर्न्ड विद द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आंसर रिसर्च मस्ट आंसर द क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उसकी क्या एफिशिएंसी है उससे रिलेटेड आंसर होना चाहिए रिसर्च में। एंड देयर मस्ट बी सम इन्वायरमेंट टू विच द डिफिकल्टी पर्टेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि कुछ इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो डिफिकल्टी या वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। So these were the components of research problem that we have discussed. कि there must be some individual or group or organization which is facing the difficulty, and there must be some objective. Then there must be some alternatives also, courses of action. Because if we have not having any alternative, then we cannot achieve the objective. And there must be some doubt also in the mind of researcher
with regard to selection ki which alternative or which course of action we have to select which will be best suitable for the problem solving, and there must be environment also where the difficulty is pursuing. ठीक है, these are the components of research. Now next what topic is we will discuss here is about techniques. Now how we can define or we can identify a problem. Now there are certain techniques for the better identifying, for better defining the problem. Not कुछ techniques होते हैं research में. टेक्निक्स क्या है, पहला है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट हमको, जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें स्टेट करना चाहिए जनरल वे में, ब्रॉड वे में, जनरल वे में, कि जिस पे हम इजीली जो है उस पर रिसर्च कर पाए. मतलब जो भी इसका जो भी प्रॉब्लम है हम डिफाइन कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट मैटर हमें पता होना चाहिए. ठीक है, जिससे कि हम उस पर फर्दर एनालिसिस कर पाए. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके नेचर को हमें समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है, उसका नेचर कैसा है. फिर सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर. अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी अवेलेबल आपके पास मार्केट में कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं या थ्योरीज हैं या किसी प्रीवियस रिसर्चर ने उस फील्ड में रिसर्च कर रखी है, तो जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरीज अवेलेबल हैं, लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, उनको हमें सर्वे करना चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जो भी आइडियाज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, और उसके बाद प्रॉब्लम को हम एक वर्किंग फॉर्म में रिफ्रेश करते हैं कि उस पर हम फाइनली एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर पाए. तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वी विल डिस्क्राइब ऑल ईच एंड एवरी टेक्निक वन बाय वन. So moving on with the first point, that is statement of the problem in a general way. तो first of all जो भी problem है it should be stated in a general way keeping in view some practical और some scientific और intellectual interest. तो कुछ प्रैक्टिकली हम उस पर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिफिकली कैसे कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें उस प्रॉब्लम को एक जनरल वे में स्टेट करना होता है. इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी रिसर्चर होता है he should immerse himself thoroughly in the subject matter. जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है उससे उससे उसको मतलब उसको इमर्स करना चाहिए, मतलब उसको he should go in detail thoroughly with the subject content of that problem for which he wishes to pose a problem. In case of social research, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम सोशल रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एडवाइजेबल टू डू सम फील्ड ऑब्जर्वेशन. अगर सोशल रिसर्च से रिलेटेड है तो ये एडवाइजेबल होता है कि हम वहाँ पे किसी तरीके का फील्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फील्ड्स में जाके ऑब्जर्व करके हम कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और एज सच द रिसर्चर में अंडरटेक सम सॉर्ट ऑफ, या किसी भी तरीके का हम प्रिलिमिनरी सर्वे भी ले सकते हैं एक तरीके का. ठीक है, इसको हम पायलट सर्वे कहते हैं. प्रिलिमिनरी सर्वे करके या फील्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन द रिसर्चर कैन हिमसेल्फ स्टेट द प्रॉब्लम और ही कैन सीक द गाइडेंस. ठीक है, और या फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए रिसर्चर जो है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेट कर सकता है, और या फिर वो किसी भी गाइड का गाइड या एक्सपर्ट का गाइडेंस के थ्रू प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है. ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम को बेटर वे में डिफाइन कर सकते हैं. तो पहला क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें एक जनरल वे में स्टेट करना होता है. तो जनरल वे में स्टेट करने के लिए हमें पहले रिसर्चर को, अगर सोशल रिसर्च है तो वो प्रिलिमिनरी सर्वे भी कर सकता है या फील्ड ऑब्जर्वेशन कर सकता है. ठीक है, या फिर जो भी सब्जेक्ट मैटर है प्रॉब्लम से रिलेटेड उससे आप उसको मतलब प्रॉपरली जो है पता होना चाहिए. ठीक है, फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है उसका नेचर कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पे टू नेचर मीन्स टू अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन. वो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका नेचर कैसा है, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए. तो उसका बेस्ट वे क्या, तरीका क्या है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का, कि हम इसको उनसे डिस्कस कर सकते हैं जहाँ से, जिन्होंने ये प्रॉब्लम अराइज की है, जहाँ से वो रेज हुई है, जहाँ से उसका स्टार्टअप हुआ है. ठीक है, विद दोज हु फर्स्ट रेज इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ द प्रॉब्लम ओरिजिनली केम अबाउट. ठीक है, कहाँ से वो प्रॉब्लम ओरिजिनली आई है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ही कैन एंटर इनटू डिस्कशन विद दोज हु आर हैविंग अ गुड नॉलेज. ठीक है, तो बेटर और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं जिनको एक अच्छी नॉलेज है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड. ठीक है, या सिमिलर उसी तरह की कोई अदर प्रॉब्लम है तो. ठीक है, तो रिसर्चर शुड ऑल्सो कीप इन व्यू द एनवायरमेंट विद इन विच द प्रॉब्लम इज टू बी स्टडीड. और इसके लिए रिसर्चर को वो इन्वायरमेंट भी मतलब उस पर भी फोकस करना चाहिए जहाँ पे वो प्रॉब्लम स्टडी की जा रही है या जहाँ पे उस प्रॉब्लम के नेचर को अंडरस्टैंड किया जा रहा है. तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम के नेचर को अंडरस्टैंड, उसके ओरिजिन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसके लिए हम जो भी
ऑल्टरनेटिव्स हमारे उस इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं, या जो भी अगर कुछ लोग हैं जो जहाँ से वो प्रॉब्लम अराइज है उनके थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, या जिनके पास एक अच्छी नॉलेज है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वी कैन डिस्कस विद देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। हियर वी विल डिस्कस की वॉट एवर जो भी अब उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो भी अवेलेबल आपके पास कॉन्सेप्ट थ्योरीज अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको सर्वे कर सकते हो। So all available literature concerned with the problem at hand must necessarily be surveyed and examined before a definition of the problem is given. ठीक है, this means that the researcher must be well conversant with the relevant theories in the field. जो भी फील्ड में वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसके बारे में वेल कॉन्वर्सेंट होना चाहिए, ठीक है, जो भी थ्योरीज उस फील्ड में अवेलेबल हैं या जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं या कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ही मस्ट डिवोट सफिशिएंट टाइम इन रिव्यूइंग ऑफ द रिसर्च ऑलरेडी टेकन ऑन रिलेटेड। अगर उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई अदर रिसर्च स्टडीज पहले प्रीवियस हो चुकी है, प्रीवियस फाइंडिंग्स वगैरह हो चुकी हैं, तो उसमें उसको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए कि उसको वो दोबारा से सर्वे कर पाए या रिव्यू कर पाए। दिस विल help him in the problem solving, and this is done to find out what data and other materials if any available for the operation. तो ऑपरेशन पर्पस के लिए अगर आपको कोई डेटा या मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, इसीलिए हम उस सारे कॉन्सेप्ट्स का या रिकॉर्ड्स को या फील्ड्स को रिपोर्ट्स को हम सर्वे करते हैं, जिससे कि हमें कुछ डेटा मिल पाए कि हम फर्दर उस पर एंड रिसर्च करें। देन फोर्थ टेक्निक इज डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशंस। नाउ जो भी आइडियाज हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिस्कशंस के थ्रू, ठीक है। तो डिस्कशंस मींस डिस्कशंस कंसर्निंग अ प्रॉब्लम ऑफन प्रोड्यूसेस, कि डिस्कशन अगर हम करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ही हमें इनफ इंफॉर्मेशन डेटा मिलेगा मार्केट से। सो वेरियस न्यू आइडियाज कैन बी डेवलप्ड थ्रू सच एन एक्सरसाइज, ठीक है, यू कैन इन्वेंट वेरियस न्यू आइडियाज। सो अ रिसर्चर मस्ट डिस्कस हिज प्रॉब्लम विद हिज कलीग्स एंड अदर्स। तो इसके लिए क्या कर सकता है कि जो भी रिसर्चर है वो उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है कलीग्स के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, उनको इनफ एक्सपीरियंस है उस सेम एरिया में या सेम प्रॉब्लम से, सिमिलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो इस टाइप के सर्वे को हम एक्सपीरियंस सर्वे कहते हैं, कि जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं उन लोगों के साथ जिनको उस फील्ड में या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इनफ इन्फॉर्मेशन है, इसको हम एक्सपीरियंस सर्वे कहते हैं। तो डिस्कशंस के थ्रू हम न्यू आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका क्या है, एक्सपीरियंस सर्वे। फिफ्थ पॉइंट है रिफ्रेजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको फाइनली हम रिफ्रेज करते हैं कि सो दैट हम उसको एक वर्किंग टर्म्स में उसको हम उस पर फर्दर रिसर्च कर पाए। तो फाइनली द रिसर्चर मस्ट सिट टू रिफ्रेज द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू वर्किंग प्रोपोजिशन, मींस व्हेन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन अंडरस्टूड एंड एनवायरनमेंट जहाँ पे वो प्रॉब्लम स्टडी की गई है उसको डिफाइन कर दिया है, अगर हमने प्रॉब्लम को अगर हमने डिस्कस कर दिया है और अवेलेबल लिटरेचर को सर्वे किया है, तो उसके बाद हम लास्टली फाइनली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिफ्रेश करते हैं कि उस पर हम फर्दर एनालिसिस कर पाए, उसको एनालिटिकल टर्म्स में हम रिफ्रेश करते हैं कि उस पर हम जिससे कि हम उस पर अगर हम कोई स्टडी करें तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट ना हो। थ्रू रिफ्रेजिंग द रिसर्चर पुट द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। रिफ्रेजिंग टेक्निक के थ्रू क्या करता है, रिसर्चर जो है रिसर्च प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक टर्म्स में रिफ्रेज कर लेता है, सो दैट इट मे बिकम ऑपरेशनली वाइब, सो दैट कि अगर उस पर वो फर्दर एनालिसिस या टेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए वो ईजी हो जाए, ठीक है। एंड फॉर डेवलपिंग द assumptions also, for the development of working hypothesis means for the developing of assumptions also. So these are the techniques. Now the following points must be observed while defining a research problem. ये कुछ points हैं जो हमें observe करने होते हैं जब हम problem को define करते हैं। पहला क्या है कि technical terms, जो भी technical terms होते हैं, बहुत ही difficult words होते हैं, phrases होते हैं, ठीक है, या जिनकी एक स्पेशल मीनिंग जिससे निकलती है उस प्रॉब्लम को स्टेट करने की, उसको हमें क्लियरली डिफाइन करना होता है। फिर सेकंड क्या है कि बेसिक एजम्पशंस, जो भी एजम्पशंस या हाइपोथेसिस हमने ले रखे हैं अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको हमें क्लियरली स्टेट करना होता है। थर्ड है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो भी आप इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है। मतलब जो भी आप प्रॉब्लम को सिलेक्शन के लिए जो भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करना होता है। सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड आप रिसर्च पे दे सकते हैं, सुटेबिलिटी, और किन किन सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी के थ्रू या सेकेंडरी के थ्रू, मतलब प्राइमरी मतलब इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या किसी सेकेंडरी सोर्स से, किसी मैगजीन जर्नल से, तो क्या सोर्सेज हैं डेटा अवेलेबल का, ठीक है, उसको भी हमें प्रॉब्लम डिफाइनिंग में कंसिडर करना चाहिए रिसर्चर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मतलब किस लिमिट तक हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मतलब किस एरिया तक हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी हमें प्रॉब्लम डिफाइनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड
ठीक है, ये पॉइंट्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हम किस लिमिट तक, किस स्कोप तक उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड हमारे लिए सुटेबल है, क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और क्या क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करते हैं। इट शुड बी ऑल्सो प्रोवाइडेड क्या क्या एग्जाम्पन्स ले रखे हैं, अगर कुछ हैं एग्जाम्पन्स लिए आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या क्या अगर कोई टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है, उसको हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए. सो दीज वर द पॉइंट्स दैट वी हैव discussed here. Then I have mentioned here a illustration so that कि this whole concept of problem can be understood. ठीक है, टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम आउटलाइंड अब जो भी पॉइंट्स हमने अभी आउटलाइन किए थे, ठीक है, तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि लेट अस सपोज दैट अ रिसर्च प्रॉब्लम इन अ ब्रॉड जनरल वे इज एज फॉलोज, कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम है इस तरीके से, एग्जांपल लाइक व्हाई इज प्रोडक्टिविटी इन जापान सो मच हायर देन इन इंडिया. ठीक है, इस एग्जांपल में दिया है कि क्यों जापान की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इंडिया से. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप देखिए और इसको देखिए कि इन दिस फॉर्म द क्वेश्चन हैज़ द नंबर ऑफ एम्बिग्यूटीज. इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये लगता है कि इस पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं, कि मतलब यहाँ पे ये क्लियरली डिफाइन नहीं हो रहा है कि किस टाइप की प्रोडक्टिविटी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, या किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, या किस टाइम पीरियड के बारे में, ये प्रोडक्टिविटी के बारे में हम कह रहे हैं यहाँ पे. इन व्यू ऑफ ऑल सच एम्बिग्यूटीज, तो ये जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी एम्बिग्यूटीज हैं, इस एम्बिग्यूटीज को हम क्या है फाइनली एक क्लियर टर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जो भी प्रॉब्लम हमारी होती है उसको हम एक ब्रॉड जनरल वे में डिफाइन करते हैं कि जिससे हम उसको अच्छे से समझ पाए. ठीक है, तो जो भी एग्जांपल हमने अभी ये लिया, वाई इट्स प्रोडक्टिविटी इन जापान सो मच हायर देन इन इंडिया, इस प्रॉब्लम से, इस एग्जांपल से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है, किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ये किस टाइप की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है. तो इस प्रॉब्लम को हम एक जनरल वे में, जनरल स्टेटमेंट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो इस पर हम रीथिंक करेंगे और डिस्कशंस अबाउट द प्रॉब्लम में रिजल्ट इन, अगर इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे या रीथिंक करेंगे तो इसको हम जो है एक ब्रॉड वे में, जनरल वे में इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो आफ्टर दैट with the discussion we can do that कि what factors were responsible for the higher labor productivity of Japan manufacturing industries during the decade 1971 to 80 related to Indian marriage. अब इस टॉपिक से क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमने उसको एक जनरल वे में क्लासीफाई कर दिया, जिससे कि वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे नाउ अगर जब हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को, तो उसको हम एक जनरल वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इजीली क्लियर है कि हम कौन से इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. जापान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. टाइम ड्यूरेशन भी स्पेसिफाइड है 71 टू 80 टाइम पीरियड में. क्यों जो है जापान की इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन. ठीक है, तो ये जो लेटर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम है, जो इज़ डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट ओवर इट्स अर्लियर वर्जन फॉर द वेरियस एम्बिग्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड. क्योंकि इस यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को में हमने बहुत सारी एम्बिग्यूटीज को जो ऊपर वाले क्वेश्चन पॉइंट में थी, एग्जाम्पल में थी, उसको हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, फर्दर रीथिंकिंग एंड रिफ्रेजिंग माइट प्लेस द प्रॉब्लम ऑन अ स्टिल बैड. अब इस प्रॉब्लम पे हम जो भी रिसर्च करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इजीली स्टेट किया गया है. ठीक है, उसको अच्छे से क्लियरली स्टेट किया गया है कि प्रॉब्लम है क्या, किस इंडस्ट्री के बारे में है, किस टाइम पीरियड के बारे में है, और किस चीज़ की बात कही गई है. ठीक है, सो टू व्हाट एक्सटेंट डिड लेबर प्रोडक्टिविटी इन 71 to 80 in Japan exceed that of India in respect of 15 selected manufacturing industries and what factors were responsible. ठीक है, तो इससे हम जो है ऑब्जेक्टिव को अपने क्लियरली स्टेट कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे कि जिस वजह से हमारी जो जापान की प्रोडक्टिविटी थी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि दोनों इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, और कितने एक्सटेंट तक प्रोडक्टिविटी जापान की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया इन 15 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. तो इससे हमारा क्या होगा कि रिसर्च प्रोसेस जो हमारा होगा वो ईजी हो जाएगा. इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें जो है डिफाइन करना होता है एक ब्रॉड वे में. तो प्रॉब्लम में डिफाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डिस्कशंस कर सकते हैं और जितनी भी टेक्निक्स हमने स्टडी की हैं. So that's all about today's presentation. So in today's presentation, I have discussed now what do you mean by research problem, okay, and what are the techniques of defining research problem, and then what is the, okay, these are the components of research problem that we have discussed today. So that's all about today.
ठीक है, research problem, then components, then we have discussed about the technique कि what is the statement of the problem in general way, ठीक है, understanding the nature of the problem, then surveying the available literature, then developing the ideas through discussions and rephrasing the problem. This was the final technique. And then we have discussed ki what points we have to observe while defining any problem. So here we have discussed ki assumptions we have to clearly state, we have to state the technical terms, we have to state the criteria for the investigation purpose, and then we have to state the time period suitability and sources of data collection, then the scope of the investigation. These are the things that we have to observe while defining any problem. And in spite of that, we have discussed here about the illustration also, ki how we can classify that problem in a general way, how we can define a problem. So this we have discussed with the help of this example, that was productivity in Japan as compared to India. So that's all for today's presentation, and thank you students for today's class. Thank you.